Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our next lecture, that is lecture number 5 for web technologies and programming. In this lecture, we are going to discuss web application architectures. Before proceeding to the current lecture, let's go through the summary of previous lecture. In the previous lecture, we have studied about the system modeling. In system modeling, we have considered 4 major categories of modeling. First one is requirement modeling. In the requirement modeling, we have seen use case diagram and activity diagram. We have seen in detail the different symbols of use case diagrams, and then the actor and its action and its include relationship and its extend relationship, and then we have discussed a conference paper submission use case diagram. Then we have seen an activity diagram with its start and end symbols, in its activity, its decision symbols. And then we have studied for content modeling. In content modeling, we have seen 2 diagrams, class diagram and state machine diagram. In class diagram, we have studied different elements of class diagram. We have seen the name of the classes, their attributes, and then their methods, and how a class is related with another class, that is the relationship between classes. Then we have seen the composition, the aggregation concept in classes, and then we have seen state machine diagram for different states with its regard symbol. And then we have seen navigational modeling for hypertext, how the navigations are presented. And then for the user layer, we have seen the presentation modeling. We have seen different presentations, modeling symbols and its diagram as well. Moving towards that, in the last lecture, we have discussed different technologies for web development. For that, we have seen 2 major types of technologies. We have seen the client-side technologies, and then we have seen the server-side technologies. And then we have seen some protocols such as hypertext transfer protocol, that is for communication between client and server. We have seen an SMTP, that is a protocol for email system. And after the protocols, we have seen how a system is tested after design and implementation phase. And we have learned the objectives of testing. Why do we perform testing? Because we want to achieve quality in our products. Then we have studied the major levels of testing, that is unit level testing, integration level testing, system level testing, acceptance testing, beta testing. And then we have seen different web application specific testing types like cross-browser testing, link testing. So after studying different types of testing, we have seen the key challenges for testing web-based application because of different cross browsers, because of different operating systems, different hardwares. So we have seen the major challenges in the previous lecture. Let's move to the current lecture. In today's lecture, we are going to discuss web-based software system architectures, and then specifically we will consider the web-based
application architectures, and then we will discuss one by one in detail the layered architectures for web-based application, what is meant by two-layered architecture, then three-layered architecture, and then n-layer architecture. We will discuss in detail all the layered architecture. Number 1, software system architecture. What do you mean by the word architecture? The architecture of a computer system is the high level, abstract level, in general, a design on which a system is going to be based. So before the development phase, we need to have an architecture of a system. And what is the architecture? किसी भी सिस्टम के एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, जेनेरिक लेवल पे जब हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो हम आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं. इस आर्किटेक्चर की बेस के ऊपर ही हमारा सिस्टम डेवलप होता है. एंड व्हाट डज आर्किटेक्चर इंक्लूड्स? आर्किटेक्चर इंक्लूड्स the following key features. First, our architecture consists of three major things: components, connectors, and collaborations. What is component? Component is basically part of the program of the application that you are going to develop, and that part consists of related requirements. and requirements को हम already study कर चुके हैं lecture 3 में, lecture 4 में. So related requirements को collectively हम एक specific module का, specific component का नाम देते हैं और different components मिलके एक system को, एक software product को बना रहे होते हैं. So what does it means? It means कि एक component एक किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी एप्लीकेशन का एक पार्ट होता है और इसके अंदर सेवरल रूटीन्स होती हैं, सेवरल फ्लो ऑफ टास्क होते हैं. कनेक्टर, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट जो करता है वो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर करता है. सो कनेक्टर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन ऑफ components. And the third one is collaboration. So how components interact? This come under the concept of collaboration. एक component को किस component के साथ collaborate करना है और किस component के साथ कितनी दफा collaborate करना है और क्या एक component को दो या दो से ज्यादा component से collaborate करना है और किन सेट ऑफ रूल्स के तहत कोलैबोरेट करना है, ये सारा हम कोलैबोरेशन के अंदर देख रहे होते हैं. सो ये तीनों पार्ट्स मिलके कंपोनेंट्स, कनेक्टर्स एंड कोलैबोरेटर्स कंबाइनली जब हम यूटिलाइज करते हैं तो वी डिजाइन एन आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम. नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर? Architecture describes the structure. Number 1, structure means आपके components आप कहाँ कहाँ organize हुए होंगे, layouts of the components and connectors. Then architecture forms the transition. Transition means change of state. Which change of state? From analysis towards implementation. आपकी जो agreed requirements हैं, that is requirement specification, और जो आप develop करने जा रहे हैं system, उसके दरमियान component as a bridge act करते हैं और architecture जो है वो आपके as a bridge act करता है. So architecture जो है वो define कर रहा होता है आपके components को. Then different viewpoints. व्यू पॉइंट आपके कॉन्सेप्चुअल्स हो सकते हैं, दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन जनरल. व्यू पॉइंट इज बेसिकली स्पेसिफिक फ्लो ऑफ
फीचर्स को आप देख रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे, दैट इज योर व्यू पॉइंट। ये कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, रन टाइम पे आपका एक व्यू जनरेट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस जो रिक्वेस्ट आई है उसके मुताबिक एक व्यू जनरेट हो सकता है, एंड आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है उस इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंगली आपका व्यू जनरेट हो सकता है। एंड ऑल दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिस्टम। सो विद द हेल्प ऑफ द आर्किटेक्चर आप एक सिस्टम को समझ सकते हैं कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल्स के आपस में कैसा कनेक्शंस हुए हुए हैं, कोलैबोरेशन कैसे हुई हुई है, उसके व्यू पॉइंट्स कौन से हैं, और उसकी ट्रांजिशन कैसे हो रही है, ये सब आपको आर्किटेक्चर जो है हेल्प करता है। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सिस्टम आर्किटेक्चर। सो व्हाट आर दैट फैक्टर्स? नंबर 1, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जो आपकी क्लाइंट की तरफ से आपको बताई जाती हैं कि आपको अपने सिस्टम के अंदर एम्बेड करनी है, डिज़ाइन करनी है, डेवलप करनी है। और ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको क्लाइंट्स बताते हैं, आपके यूजर्स बता रहे होते हैं जिन्होंने आपके सिस्टम को यूज़ करना है, आपके स्टेक होल्डर्स बता रहे होंगे। और इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ आपको कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी कंसीडर करने हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट परफॉर्मेंस है। इन परफॉर्मेंस के अंदर हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देखा लोड एंड स्ट्रेस को। सो लोड एंड स्ट्रेस परफॉर्मेंस की हेडिंग में आ रहे हैं। और इसके साथ स्केलेबिलिटी है कि एक सिस्टम के अंदर हम कैसे हार्डवेयर इन्हांसमेंट करें और कब हार्डवेयर इन्हांसमेंट करें, और सिस्टम जो है उसका रिस्पॉन्स टाइम, उसका जो थ्रूपुट है वो मेंटेन रहे। और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को अगर हमें रीयूज करना है तो वो हमने कब करना है और कैसे यूज करना है, ये तमाम फैक्टर्स किसी भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो इफ यू डू कंसिडर द एरो इज शोइंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर इफेक्टिंग आर्किटेक्चर। देन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर्स। अगर ऑलरेडी आपने एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ने मल्टीपल आर्किटेक्चर्स पे, एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर पे काम किया हुआ है, सो वो एक्सपीरियंस उसको बेनिफिशियल होता है। ही और शी नोज बेटरली कि ये आर्किटेक्चर इसके लिए सुटेबल है या नहीं है। देन पैटर्न्स, डिजाइन पैटर्न्स आपके इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके आर्किटेक्चर्स पे। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कॉस्ट होती है आपकी, जो आपके डिफाइंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अलाउ किए गए, वो इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके आर्किटेक्चर पे। इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। और वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आर्किटेक्चर पे इफेक्ट कर रहा होता है कि आइदर ये एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, आइदर विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या सिस्टम का आर्किटेक्चर 32 बिट है या सिस्टम का आर्किटेक्चर 64 बिट है, ये इफेक्ट कर रहा होगा आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे। देन मिडलवेयर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर that help to communicate between other softwares. So middlewares जो हैं वो आपके इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके आर्किटेक्चर पे। एंड आपके लेगेसी सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज में डेवलप्ड हैं, अगर लेट सपोज ऐसे सिस्टम को आपने रीवैम्प करना है, रीस्ट्रक्चर करना है एक नई टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो इफेक्ट कर रहा होता है आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर को। So a number of architectures are there, but we need to find specific architecture for web-based application. So in the current slide, we are going to discuss specific web-based application architectures. So for web-based application, we need to have specific requirement
considering that particular application domain that we have to be developed and deployed. So whenever we want to design an architecture for web-based application, we need to consider the following factors. Layering aspect, one of the very major aspect we need to consider for web-based application architecture. And what is layering architecture? Layering architecture or layered aspect is concerned with the principle of separation of concern, कि आपका जो कंसर्न है इम्प्लीमेंटेशन में वो अलग अलग लेयर में डिजाइन किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली डेवलप किया जाए. द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज डेटा एस्पेक्ट्स. सो आपका जो डेटा है जिसने फ्लो करना है वो आपकी डेटा की जो प्रोसेसिंग है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, एक सिस्टमैटिक स्टाइल से हो, या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, कोई प्रॉपर उसके अंदर सिस्टमैटिक मैकेनिज्म अवेलेबल ना हो प्रोसेसिंग का. सो डेटा का एस्पेक्ट एंड लेयरिंग एस्पेक्ट is very important whenever you want to design an architecture for web-based applications. For web applications, quality requirements are more demanding as compared to desktop applications. So, in desktop applications, quality की कुछ factors जो हैं वो already minimize हो जाते हैं, बिकॉज हमारे पास डाइवर्स यूजर्स नहीं होते. एक वेब एप्लीकेशन में ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड यूजर्स डिफरेंट हार्डवेयर से, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से, डिफरेंट वेब ब्राउजर्स को यूज करते हुए एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं. सो इसलिए क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, ज़्यादा होती हैं और उसको हैंडल करना एक डिफिकल्ट टास्क है. और वो क्वालिटी फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन में ज़्यादा फोकस करने होते हैं एज कंपेयर टू डेस्कटॉप एप्लीकेशंस? परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इज द मेजर फंक्शन दैट वी नीड टू कंसिडर फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन. हमारा रिस्पॉन्स टाइम, हमारी थ्रूपुट, हमारी सिक्योरिटी, हमारी स्केलेबिलिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन. सो हमारी एक एप्लीकेशन को 24/7 अवेलेबल होना एंड उस एप्लीकेशन को रिलायबल रिजल्ट्स परफॉर्म करना और वैलिड यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड वैलिड यूजर इनपुट्स एंड देन राइट यूजर्स को ऑथेंटिकेट करना और उसके अकॉर्डिंगली उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उनका रिस्पॉन्स टाइम फॉर द आउटपुट एक डिजायर्ड एंड रिक्वायर्ड के मुताबिक हो. ये हमारे वो की फैक्टर्स हैं दैट वी नीड टू कंसिडर फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस. इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में और उसके ऑपरेशंस में उसकी ज़रूरत है, जिसका कंसर्न वेब होस्टिंग के साथ है, डिप्लॉयमेंट के साथ है, वेब बेस्ड सर्वर्स के साथ है कुछ. So we need to consider that as well. That is not as such complex when considered in desktop application. So किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए उसके आर्किटेक्चर में हमें इन चीज़ों को लाजमी मद्देनजर रखना है. नंबर 1 इज वेब इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर एंड नंबर 2 इज वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर. So web infrastructure architecture is WPA while web application architecture is said as WAA. So both architectures को जब हमने स्टडी किए we need to consider. और इसमें वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर जो है वो डिपेंड कर रहा होगा कि आपकी एप्लीकेशन की डोमेन क्या है. आइदर वो एक डायनेमिक बेस्ड सिर्फ इंफॉर्मेशन गिविंग साइट है, आइदर वो आपकी वेब बेस्ड की कैटेगरी में सोशल कोलैबोरेशन की कोई वेबसाइट है, कोई आपका वेब पोर्टल है, ऑनलाइन बैंकिंग की एप्लीकेशन है. सबकी एप्लीकेशन की डोमेन जो है वो उसके अंदर मैटर कर रही होगी और उसको देखते हुए
हम उसका वेब प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर जो है वो कंसिडर करेंगे और उसको फोकस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ WAA? नंबर 1, क्लाइंट। किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन में एक क्लाइंट जो है वो विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर एक्सेस करता है अपनी एप्लीकेशन को और रिक्वेस्ट करता है अपनी रेलिवेंट क्वेरी को। सो जनरली जो वेब ब्राउजर है उसको हम यूजर एजेंट कहते हैं, उसको कंट्रोल कर रहा होता है एक यूजर, और यूजर उससे क्या कर रहा होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑपरेट करना चाह रहा होता है। और इस क्लाइंट की जो फंक्शनैलिटी है वो जो कंट्रोल करना चाह रहा है वो डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स, हमने लास्ट टाइम देखा था प्लगइन्स को कि वो वेब ब्राउजर्स के अंदर एक एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है, वो उसको इंस्टॉल करके प्लगइन को वेब एप्लीकेशन को ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है, डिफरेंट डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकता है। एंड देन द सेकंड कंपोनेंट इज फायरवॉल। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर की रेगुलेटिंग कम्युनिकेशन है जो ये इंश्योर करती है कि आपके इनसिक्योर नेटवर्क्स जो इंटरनेट पे मौजूद हैं और आपके जो सिक्योर नेटवर्क्स मौजूद हैं जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं उनके दरमियान एक स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन हो, उसके अंदर कोई भी रॉन्ग मिस कम्युनिकेशन ना हो और उसके अंदर कोई भी वायरस ओरिएंटेड, malware oriented data transferring ना हो। So firewall is basically software that bridges the gap of insecure internet and secure internet. And internet is combination of networks. So some networks that exist might have insecure communication, while LAN is a network, is a corporate network, and that usually have a smooth communication. So this communication is filtered by some set of rules that are defined by firewall. Proxy. Proxy is basically a temporary data storage available on web, and this data storage stores the pages in its cache. In proxy, whenever user requests a resource, so वो जो रिसोर्स एक्सेस कर रहा होता है सबसे पहले उस रिसोर्स को चेक किया जाता है कि उस रिसोर्स की जो हेडर आईडी है वो प्रॉक्सी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर वो प्रॉक्सी में एग्जिस्ट करती है तो उसको प्रॉक्सी से सर्व किया जाता है। वाई? सो दैट बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन मिनिमाइज किया जा सके और रिस्पॉन्स टाइम को अच्छा किया जा सके। और इन केस वो प्रॉक्सी में एग्जिस्ट नहीं करती तो देन उसको शिफ्ट किया जाता है टुवर्ड्स द वेब एप्लीकेशन सर्वर, और सर्वर से वो रिक्वेस्ट ले जाती है। सो जब सर्वर से वो रिक्वेस्ट क्लाइंट को सर्व की जाती है तो वो एट द सेम टाइम प्रॉक्सी की कैश में भी एंटर कर दी जाती है। वेब सर्वर। A web server is basically a piece of software that supports various web protocols. For example, HTTP and HTTPS, where HTTPS is a secure layer communication protocol to process the client requests. So web server के अंदर ये दो प्रोटोकॉल्स और इस तरह के प्रोटोकॉल्स की सपोर्ट होती है। 10 डेटाबेस सर्वर। इस सर्वर के अंदर आपका डेटाबेस सिस्टम डिप्लॉय होता है और इसके अंदर सारे टेबल्स और उनकी रिलेशनशिप और उनकी डेटा टाइप और मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी ये सारी डिफाइन की जाती है। एंड नॉर्मली इट सप्लाइज डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। देन नेक्स्ट वन इज लेगेसी एप्लीकेशन। लेगेसी एप्लीकेशन एक ओल्डर सिस्टम होता है that we want to integrate in our new system,
और और हम लेगेसी सिस्टम को इन्हांस करना चाह रहे होते हैं फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। सो हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन जो प्रीवियसली किसी ओल्ड टेक्नोलॉजी में बनी हो और वो प्रीवियस प्लेटफॉर्म्स के साथ, आउटडेटेड हार्डवेयर के साथ, आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एग्जीक्यूट हो रही हो, वो लेगेसी एप्लीकेशन काउंट होती है। देन मीडिया सर्वर। मीडिया सर्वर्स प्राइमरी यूज होते हैं कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए। जब आपके पास डेटा, बल्क डेटा होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक वीडियो चैनल है, उसमें आपने जीबीज में डाटा आपका स्ट्रीम होना है और सपोज 100 वीडियोस हैं, सो बल्क में वीडियोस ने स्ट्रीम होना है। सो इनको मैनेज करने के लिए आपका मीडिया सर्वर होता है, और ये ऑडियो डेटा भी हो सकता है, ये वीडियो डेटा भी हो सकता है। एंड देन एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर जो है ये आपकी तमाम फंक्शनैलिटीज जो एप्लीकेशंस ने परफॉर्म करनी होती है उनको रखता है, उनको कंटेन करता है। सो क्लाइंट ने, यूजर ने डिफरेंट तरह की रिक्वेस्ट की होंगी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस ने हैंडल करनी है और प्रोसेस करनी है अकॉर्डिंगली, और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आना है। सो वो एप्लीकेशन सर्वर जो है वो रेलिवेंट एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को कैटर करता है। If you do consider in this diagram, there's a complete view of component of web applications are presented. If you do see in the leftmost side, there's a client. आपके पास client मौजूद है जिसने आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेस करना है with the help of web browser, for example Firefox, Chrome, etc. वो अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा, और क्लाइंट एक थर्ड पार्टी प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो अलग से स्ट्रीमिंग के लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है और वो किसी स्पेसिफिक मीडिया प्लेयर पे अपनी स्ट्रीमिंग को व्यू करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल वो पीडीएफ फाइल्स को वेब ब्राउजर के अंदर ही व्यू करना चाह रहा है, तो वो पीडीएफ का एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है, एंड सिमिलरली सम अदर्स। सो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले फायरवॉल चेक करता है। इफ द फायरवॉल ऑन योर सिस्टम इज इन ऑन स्टेट, इफ इट इज ऑफ तो फायरवॉल की फंक्शनैलिटी नहीं होती, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट योर फायरवॉल शुड बी ऑन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन client, browser request and internet. So according to the firewall, the request is first of all travel to the proxy server. अब वो proxy server में जाती है और proxy server उसके header की information को verify करता है वेब सर्वर से कि क्या जो रिक्वेस्ट की गई ये प्रॉक्सी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर वो प्रॉक्सी में एग्जिस्ट करती है आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द हेडर, तो वो प्रॉक्सी से ही सर्व की जाती है। प्रॉक्सी इज बेसिकली अ कैश ओवर हियर। अब ये कैश में से आपको डेटा सर्व कर दिया जाता है। इन केस अगर वो प्रॉक्सी में डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देन ये वेब सर्वर के अंदर डेटा एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के अंदर चली जाती है। वेब सर्वर जो है उसके साथ डिफरेंट सर्वर्स लिंक्ड होते हैं। लाइक वो डेटाबेस सर्वर लिंक्ड होता है, उसके साथ मीडिया सर्वर लिंक्ड होता है, उसके साथ एप्लीकेशन सर्वर लिंक्ड होता है। और एप्लीकेशन सर्वर किसी लेगेसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हुआ होगा, या लेगेसी सिस्टम से कोई डाटा आ रहा है एप्लीकेशन में और एप्लीकेशन उसको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके सर्व कर रही है। एंड आपकी एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर के साथ भी लिंक्ड है। सो डेटाबेस सर्वर जो है वो एप्लीकेशन सर्वर्स को देखते हुए अपना डाटा ट्रेवल करवाते हुए सपोर्ट कर रहा है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होगा। और जब ये रिस्पॉन्स वापस जाएगा क्लाइंट की मशीन की तरफ, तो ये प्रॉक्सी के थ्रू होते हुए जाएगा। वाई? सो डेट इस डाटा को यहाँ पे रिक्वेस्ट को कैश कर लिया जाएगा प्रॉक्सी में। एंड नेक्स्ट टाइम अगर यूजर दोबारा रिक्वेस्ट करता है तो प्रॉक्सी में पहले चेक किया जाएगा और ये प्रॉक्सी में रिक्वेस्ट एग्जिस्ट कर रही होगी, तो यहां से सर्व कर दी जाएगी। इन दिस वे प्रॉक्सी मैकेनिज्म फंक्शंस।
layered architecture for web-based applications. So there are different layers. The first we need to consider presentation tier. What is presentation tier? Every web-based applications need to communicate with some other external entities, some other users on different computers. And these allows other entities to interact with the system, and this is implemented in terms of graphical user interface. So presentation layer जो है इसका बेसिक पर्पज ये है कि यूजर को जो डाटा प्रेजेंट किया जाना है वो कैसे किया जाए. So a user interface, what is that? It is a medium for the user and system. So how a user is going to communicate with the system? With the help of user interface. इस user interface ने जो कम्युनिकेट करना है वो किसी और सिस्टम से भी कम्युनिकेट करना है एंड ह्यूमन से भी कम्युनिकेट करना है. सो हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करेंगे? दिस वी ऑल टू बी कंसिडर्ड ऑन द प्रेजेंटेशन टियर. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टियर. Web-based application do more than information delivery. Why? Web-based application not only provides information but do some other functionality as well. What are that? They perform data processing, they consider the business logics, they perform the business calculations, and behind the results they are then delivered. So किसी भी web-based application ने बिजनेस लॉजिक्स को, बिजनेस कंस्ट्रेंट्स को, बिजनेस कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करके देन रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना होता है, और ये एप्लीकेशन टियर के अंदर काउंट किया जाएगा. और दिस टियर इज ऑफन कंसिडर्ड एज सर्विसेज और बिजनेस लॉजिक टियर. यू कैन से दीज आर द अल्टरनेट नेम्स फॉर द एप्लीकेशन टियर. बिजनेस लॉजिक tier or business logic layers is also said to be the same name for the application tier. The data tier. किसी भी web based application में जो information present की जाती है that is actually concerned with your data that a user need to work with. So databases जो हैं आपके वो data tier पे exist करते हैं, और information repositories जो हैं आपकी, जो data dictionaries हैं जहाँ पे डेटा की डेफिनेशन पड़ी होती है, वो भी डेटा टियर पे एग्जिस्ट करती है. एंड दिस टियर, द डेटा टियर डील्स विद द implementation of different types of information systems as well. So we have studied different sort of layered architecture. In the previous we have studied 2-layered architecture, and now we are studying 3-layer architecture. In 2-layered architecture we have seen presentation layer and application layer, while now in third, that is layered architecture, we are studying data tier architecture. So the first one, that is 2-layered architecture. In 2-layered architecture there are 2 layers. That's why it is said to be layered architecture. And 2 layers are layer 1, client layer. In client layer, the client platform is considered, and the hosting on the web server, web browser is considered. While in layer 2, that is server layer, server platform and hosting on the server is considered. So client के ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट के हार्डवेयर और क्लाइंट के जो वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट है ये क्लाइंट टियर पे होंगी, और सर्वर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ने जो रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, सर्वर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सर्वर टियर पे होंगी. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट डायरेक्टली सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर and server responds according to the client request. जो रिक्वेस्ट है वो स्टैटिक भी हो सकती है एक स्पेसिफिक पेज की, और बार बार वही रिक्वेस्ट आ रही है, और वो रिक्वेस्ट
डायनेमिक भी हो सकती है। मीन कि रिक्वेस्ट जो है वो मल्टीपल क्लाइंट्स भी सेम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एक ही क्लाइंट मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहा है तो चेंजेस आ रही हैं, तो डायनेमिक रिक्वेस्ट भी हो सकती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ टू लेयर्ड वेब आर्किटेक्चर. If you do consider on the top there is a client architecture, client layer, client tier. So client की entity को, client की object को यहाँ पे mention किया गया, client के relevant browsers यहाँ पे होंगे, client की जो technologies हैं, web technologies सारी वो यहाँ पे exist करेंगी। जबकि ये जो दूसरी लेयर जिसको एक सेपरेट बॉक्स से रेक्टेंगुलर बॉक्स की बाउंड्री देके प्रेजेंट किया गया, दिस इज सर्वर लेयर, दिस इज सर्वर टियर। सर्वर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पे होंगी और सर्वर के डिफरेंट टियर्स मजीद, फॉर एग्जांपल डेटाबेस टियर, ये सब टियर्स हैं सर्वर के, वेब एप्लीकेशन सर्वर, ये सारे यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। और वेब सर्विसेज एंड डायनेमिक HTML पेजेस, स्टैटिक HTML पेजेस, ये सारे यहीं पे एग्जिस्ट करेंगे। सो ये दोनों टियर जो हैं इनके दरमियान ये जो एरो है ये कम्युनिकेशन शो कर रहा है, क्लाइंट टियर की और सर्वर टियर की कम्युनिकेशन इसके जरिए प्रेजेंट की जा रही है। सो दिस इज टू लेयर वेब आर्किटेक्चर, क्लाइंट लेयर एंड सर्वर लेयर। सो व्हाट आर द advantages of two-layer architecture? It is very inexpensive. Why? एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका सर्वर एग्जिस्ट कर रहा होता है, आपको मल्टीपल वेब सर्वर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं होती। एंड डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर? कपलिंग बहुत ज्यादा होती है, कंपोनेंट्स टाइटली कनेक्टेड होते हैं आपस में, एंड स्केलेबिलिटी जो है इसके अंदर वो बहुत लिमिटेड है। आप इसमें इन्हांसमेंट जो है फॉर गुड परफॉर्मेंस बहुत लिमिटेड हद तक कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। एंड रिडंडेंसी नहीं है, अगर आप बैकअप बनाना चाह रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स के लिए तो वो आप नहीं कर सकते। और नॉर्मली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर 10 to 100 यूजर्स के लिए सर्व किया जाता है। एंड स्मॉल कंपनी और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस टू लेयर आर्किटेक्चर दैट इज क्लाइंट लेयर आर्किटेक्चर्स को यूज करती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव थ्री लेयर आर्किटेक्चर। व्हाट इज थ्री लेयर आर्किटेक्चर? थ्री लेयर आर्किटेक्चर is usually implemented in three layers. What are that layers? One is data layer, the second one is application layer, and the third one is presentation layer. Additionally, with these layers, firewall concept and caching functionality, that is in proxies, can also be added in three-layer architecture. That are additional functionalities. So now consider three-layer architecture diagram. The top of that is a client. इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये additional functionality है, अभी हमने स्टडी किया क्लाइंट को एंड प्रॉक्सी को। अगर ये नहीं होंगे, इन केस आपने फायरफॉक्स को फायरवॉल को डिसेबल किया हुआ है, प्रॉक्सी आपकी ऑन नहीं है, तो आपका क्लाइंट डायरेक्ट वेब सर्वर से एग्जिस्ट करेगा। सो इफ अगर आपने इन फंक्शनलिटीज को ऑन किया हुआ है तो सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वेस्ट फायरवॉल को जाएगी, फायरवॉल इन स्केयर और स्केयर नेटवर्क के दरमियान रिक्वेस्ट को स्ट्रीमलाइन करते हुए प्रॉक्सी में चेक करेगा। अगर वो कैश में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका हेडर वेब सर्वर के थ्रू वेरीफाई करते हुए, तो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी से ही सर्व हो जाएगी। और इन केस कि अगर आपकी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी में नहीं है तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट वेब सर्वर में जाएगी और वेब सर्वर से आपको
रिक्वेस्ट प्रेजेंट की जाएगी एज पर योर बिहाइंड लेयर्स. व्हाट आर दैट? लेट्स सी. वेब सर्वर आपका जो है रिप्रेजेंटेशन लेयर पे एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज योर वन लेयर इन 3-tier आर्किटेक्चर, जहां पे यूजर्स को एज पर एप्लीकेशन डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है. अब वेब सर्वर बिजनेस लेयर्स पे आपकी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करेगा. अब बिजनेस लेयर पे एप्लीकेशन की लॉजिक को देखते हुए, एप्लीकेशन की कॉन्स्ट्रेंट्स को देखते हुए, जो वैलिडेशंस लगी हुई हैं उसके ऊपर चेक्स लगे हुए हैं उनको देखते हुए, और किस किस्म की डेटा को एक्सेस किया जाता है व्यू को देखते हुए, और क्या ये किसी लेगेसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है कि नहीं उसको देखते हुए, और इसके साथ साथ कोई स्पेसिफिक किस्म की पर्सनलाइज किस्म की रिक्वेस्ट है उसको देखते हुए आपकी बिजनेस लेयर सर्व करती है. अब बिजनेस लेयर उन रिक्वायर्ड वैलिडेशंस एंड चेक्स को देखते हुए, लेगेसी सिस्टम को देखते हुए रिक्वेस्ट डेटाबेस लेयर को दे देती है. डेटाबेस लेयर के अंदर आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है. ये डेटा सर्वर पे पड़ा होता है और डेटा की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में होगी. सो आपकी रिक्वेस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट से अगेन रिवर्ट बैक की जाती है बिजनेस लॉजिक लेयर को, और बिजनेस लॉजिक लेयर जो है वो रिक्वेस्ट को रिटर्न कर रहा होगा वेब सर्वर को, और वेब सर्वर अब प्रॉक्सी को देगा सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर ये रिक्वेस्ट आती है तो प्रॉक्सी से सर्व हो सके. एंड देन इस रिक्वेस्ट की स्केयरनेस को देखते हुए ये फायरवॉल से पास की जाएगी और ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बैक दिया जाएगा इस रिक्वेस्ट का क्लाइंट को. सो इन दिस वे a client will have a smooth response for request. Next, the advantages of 3-tier architecture. What are the advantages of 3-tier architecture? Number one, it improves performance. Why it improves performance? Because every layer has its separate concern that we already studied. The ultimate benefit of layered architecture is separation of concern. So आपकी डेटा की सेपरेट लेयर है, बिजनेस लॉजिक की सेपरेट लेयर है, आपके वेब सर्वर की सेपरेट लेयर है, तो आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो जाएगी, आपकी टाइट कपलिंग नहीं है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में. अगर आप डेटा लेयर में चेंज करना चाहते हैं सो आप डायरेक्ट डेटा लेयर को एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू एक्सेस फॉर द वेब सर्वर दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर. यू डोंट नीड टू गो टुवर्ड द बिजनेस लॉजिक लेयर. सो हर लेयर पे आप उसके स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. एंड दिस इज लूज कपलिंग, दिस इज डिक्रीज कपलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. एंड स्केलेबिलिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं. अगर आपके डेटाबेस ज्यादा है और आप डेटाबेस में मजीद जो आपकी डेटा डिक्शनरीज हैं, रिपोजिटरीज हैं, उनको आप सेपरेट रखना चाह रहे हैं सो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं. एंड डिसएडवांटेज क्या है? आपको रिडंडेंसी नहीं है, हर लेयर सेपरेट है और आप एक लेयर के ऊपर उसी रेलेवेंट लेयर का डेटा रख सकेंगे. नॉर्मली जब आपको मोर देन 100 यूजर्स के लिए और अप्रोक्सीमेटली 1000 यूजर्स के लिए आपको कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, देन आप 3-layer आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं. एंड 3-layer आर्किटेक्चर जो है ये एज कंपेयर टू 2-layer आर्किटेक्चर एक स्टेप अहेड है. और जब आपको स्मॉल बिजनेस के लिए या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई चीज बनानी होती है, स्मॉल रिटेलर्स के लिए जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं स्मॉल लेवल पे, या स्मॉल कॉलेज की जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो उनके लिए अगर आप कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो देन आप 3-layer वेब आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे. N-layer web architecture. What is N-layer web architecture? It's a multi-layer N-layer architecture and it is an expansion of, enhancement of 3-layer architecture. And इसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पॉसिबल मैनर से प्रेजेंट किया जाता है. Replication and specialization. These are two major concepts. Replication means
the function of a layer or specialization means the function within a layer. So n layers, जब हमने large numbers of users को सर्व करना होगा तो n layer architecture को फॉलो करेंगे, जो 3 layer architecture की एक enhanced फॉर्म है, और इसके अंदर हमारी replication का कॉन्सेप्ट है और हमारी स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है. Now let's see what are those concepts. Replication. Application and data server are replicated through replication concept, and servers share the total workload. So if you do consider on it, हमारे पास ये clients है different, लेफ्ट साइड पे client 1, client 2, client 3, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी एप्लीकेशंस को. अब ये रिक्वेस्ट जा रही है सपोज एप्लीकेशन 2 को, सो वो रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द, ये किस क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी, प्रोसेस होके रेलिवेंट सर्वर्स पे जा रही है. इस डाटा सर्वर पे सपोज फर्स्ट 100 रिक्वेस्ट है, इस डाटा पे नेक्स्ट 100 रिक्वेस्ट है. सो यहाँ पे इंटेलिजेंटली डिफाइन हो रहा है कि रिक्वेस्ट किसकी है, और वो उस रेलिवेंट सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, और वो जिस भी रेलिवेंट एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट है उस रेलिवेंट एप्लीकेशन को सर्व की जा रही है अकॉर्डिंगली एन लेयर आर्किटेक्चर के मुताबिक. सो अगर वो एप्लीकेशन 1 की रिक्वेस्ट है, सो यूजर को एप्लीकेशन 1 के थ्रू क्लाइंट को कनेक्ट किया जाएगा, जो भी इसका रेलिवेंट क्लाइंट होगा. और अगर वो एप्लीकेशन 2 की है तो एप्लीकेशन 2 के लिए, और अगर एप्लीकेशन 3 की तो एप्लीकेशन 3 की. यहाँ पे नॉर्मली नेटवर्क लोड बैलेंसर, जो आपके पास एक अलग से प्रोग्राम होता है, वो मेंशन होता है, जो बैलेंस कर रहा होता है कि कितनी रिक्वेस्ट को हमने डाटा सर्वर 1 पे सिमुलेट करना है, कितनी रिक्वेस्ट को हमने डाटा सर्वर 2 पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर आपके पास रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है सर्वर्स पे तो. सो now the specialization concept in n-layer architecture. Servers are specialized, server are defined. इसके अंदर हर सर्वर जो है, बैक पे डाटा सर्वर है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा. Each server is assigned with specific tasks or workload by the function. That is n-layer architecture. Multiple servers आपके डिफाइन होगा. सो सर्वर 1 को डिफाइन होगा कि आपने ये 500 रिक्वेस्ट हैंडल करनी है सपोज. सर्वर 2 को डिफाइन होगा ये आपने 600 से लेके 1000 तक रिक्वेस्ट करनी है. सर्वर 3 को डिफाइन होगा कि आपने 1000 से लेके 1500 तक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है, और हर सर्वर अपनी रेलिवेंट रिक्वेस्ट को परफॉर्म करेगा. नाउ लेट्स सी थ्रू अ डायग्राम. लेट्स सपोज दिस आर द क्लाइंट एंड दे आर रिक्वेस्टिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट. लेट्स सपोज इन्होंने एक ई कॉमर्स सर्वर की रिक्वेस्ट की, एक ई कॉमर्स साइट है, उसके ऊपर से कुछ आप परचेजिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, उसकी रिक्वेस्ट हो रही है. सो उस रिक्वेस्ट के लिए उस एप्लीकेशन को हैंडल किया जाएगा, और उस एप्लीकेशन के साथ एक रेलिवेंट रिगार्डेड ईमेल ई कॉमर्स सर्वर डाटा सर्वर मौजूद होगा. सो ये डाटा सर्वर स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया ई कॉमर्स के लिए. अगर वो रिक्वेस्ट क्लाइंट की HR सर्वर से रेलिवेंट है, सो वो रिक्वेस्ट की जाएगी HR सर्वर को, और HR सर्वर जो है उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्स का डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा. एंड साइमल्टेनियसली वो जो रिक्वेस्ट की गई, लेट सपोज में कोई ईमेल करनी है आपने, सो आप उसको ईमेल भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज कि आपके डिफरेंट क्लाइंट से हर क्लाइंट अपनी अपनी रेलिवेंट एप्लीकेशंस के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, और हर एप्लीकेशन जो है उसके एक डिफाइंड सेट ऑफ डाटा सर्वर्स होंगे जिनका स्पेसिफिक काम होगा. एक एप्लीकेशन का रेलिवेंट काम एक सर्वर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसा कि आप डायग्राम में ऊपर ई कॉमर्स सर्वर के लिए देख सकते हैं. एक एप्लीकेशन का डाटा जो है वो मल्टीपल सर्वर्स में भी हो सकता है. सो मल्टीपल सर्वर्स के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सर्वर से डाटा आ रहा हो बट मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए एग्जिस्ट कर रहा हो. सो वो मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू जो रिक्वेस्ट है
उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा. So this is the concept of n-layered architecture, and it is used one step ahead for the three-tier architecture. What are the advantages of n-layered architecture? Decoupling of software components. आप बड़े easily जो है वो decoupling कर सकते हैं. Decoupling means अगर आपका जो डेटा सर्वर्स हैं वो लिंक्ड हैं तो आप डेटा सर्वर्स को ई-कॉमर्स सर्वर को सेपरेट कर सकते हैं, आप HR सर्वर को सेपरेट कर सकते हैं, आप फाइनेंस को सेपरेट कर सकते हैं. सो दीज आर डीकपलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. फ्लेक्सिबिलिटी है आपको कि आप प्लेटफॉर्म्स को उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स लोड करें. आपके डेटा सर्वर का जो प्लेटफॉर्म है वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम हो सकता है. आपका जो है HR सर्वर है उसका प्लेटफॉर्म आपका एक विंडोज सिस्टम हो सकता है. सो आप अगर चाह रहे हैं कि आप डेटा सर्वर में से जो है जो आपका प्लेटफॉर्म था वो आपका ई-कॉमर्स साइट के लिए लिनक्स से आप रिमूव कर दें, उसको विंडोज पे मूव करें, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं अलग से एक विंडोज सर्वर, और आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं किसी सर्वर को. लेट सपोज आप चाह रहे हैं कि आपकी HR में से ईमेल का सर्वर जो है एक सेपरेट सर्वर है उसको डिलीट कर दें तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं. सो आप मल्टीपल सर्वर के प्लेटफॉर्म्स के अंदर एडिशन एंड डिलीशन कर सकते हैं. दिस इज अनदर एडवांटेज एंड इट इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी इन योर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर. देन स्केलेबिलिटी. अगर आप एक स्पेसिफिक डेटा सर्वर के ऊपर इंक्रीज करना चाह रहे हैं एक और नोड को, एक और हार्डवेयर को, तो आप ऐड कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा कर सकते हैं. एंड अगर आप रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं एन-टियर आर्किटेक्चर में तो आप वो भी कर सकते हैं. आप एक सर्वर से उसका एक बैकअप बना सकते हैं. डेटा सर्वर 1 है आपके पास ई-कॉमर्स का, उसका बैकअप बना सकते हैं डेटा सर्वर 2. इन केस डेटा सर्वर 1 से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपका लोड बैलेंसर शिफ्ट कर देगा रिक्वेस्ट बैकअप पे, रेप्लिकेटेड डेटा पे, और डेटा सर्वर 2 से आपको रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वो रिक्वेस्ट आपको मिल रही होगी डेटा सर्वर 1 के अकॉर्डिंगली. बट क्लाइंट को एज अ कोहेरेंट सिस्टम ही नजर आ रहा होगा. क्लाइंट को ये फील नहीं हो रहा होगा कि डेटा सर्वर 1 का एक रेप्लिकेटेड सर्वर है और इस टाइम रिक्वेस्ट सर्वर 1 से आ रही है या सर्वर 2 से आ रही है. दिस इज अनदर ब्यूटी. It hides the complexity, it hides the internal replication concept. डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास? कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. डेफिनेटली आप मल्टीपल सर्वर्स को हैंडल कर रहे हैं, मल्टीपल हार्डवेयर्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा, मल्टीपल हार्डवेयर्स को परचेज करना पड़ेगा, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को उसके अंदर इंस्टॉल एंड एम्बेड करना पड़ेगा, एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर को आपको मैनेज करना पड़ेगा. सो डेफिनेटली इंटरनेट के अगेंस्ट इसकी कॉस्ट है क्योंकि डिफरेंट सर्वर से आप रिक्वेस्ट को लेकर आ रहे होंगे. डिज़ाइन हर सर्वर का अपने प्लेटफॉर्म अपनी टेक्नोलॉजीज की वजह से डिफरेंट होगा. इलेक्ट्रिसिटी लोड आपका इंक्रीज करेगा, सो डेफिनेटली पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी आपकी, उसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज करेगी. पावर कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसको कूलिंग के लिए आपको मज़ीद कूलिंग इक्विपमेंट चाहिए, डिफरेंट एसीज चाहिए, आपको फैंस चाहिए, बिकॉज सर्वर्स को एक कूल टेम्परेचर पे रखना होता है, बिकॉज हाई टेम्परेचर एंड डस्ट आर वेरी बैड फॉर सर्वर्स स्पेशली. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. सो if you can bear the cost especially, then n-layer architecture is a good architecture for your web-based application. But if you can't bear the cost, then definitely it's very difficult for you to design and implement such an architecture. And normally जब आप thousands या 1000+ यूजर्स के लिए किसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डिजाइन करने जा रहे हैं तो यू नीड टू कंसिडर n-layered वेब आर्किटेक्चर. और नॉर्मली जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लार्ज कंपनीज होती हैं जिनके मल्टीपल कंट्रीज में ऑफिसेज होते हैं या कॉर्पोरेट लेवल पे वो अपना डाटा कम्युनिकेट करवाना चाह रही हैं या ग्लोबली उनके यूजर्स उनकी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, सो दे यूज n-layer वेब आर्किटेक्चर. लाइक Amazon,
like Best Buy. These are the large e-commerce websites, and they are using n-layer web architecture in order to have a smooth communication between their users and between their servers. So this is all about n-layered architecture. That is our third architecture in layered architecture. So if we compare all the architectures over here, you consider the two-layered architecture, that is for client and server, is normally for the 10 to 100 users, and it is used for a small company, small organization, for small business, a local business. And when we are moving ahead, when we need to have 1000 or 100 to 1000 users, and it have a small branches, and it's a regional level business or regional level organization or company, then we will move towards the three-layer architecture. That is an application layer, the front layer, then the business layer, and the data layer. So we will follow three-layer architecture. And when we want to have users for more than 1000, when we want to have 1000 users or more than that, till million users, then we follow n-tier architecture. In an n-tier architectures, we have separate tier for each server, and there we can apply two concepts: replication concept and specification concept. And this is designed for large organization, large companies, large business domains which are spread across the countries, and the users of the applications are accessing it globally across the world. So जो हम अपने आर्किटेक्चर को इन्हांस कर रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है नंबर ऑफ यूजर्स की, हमारी स्केलेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कर रही है, हमारी रिडंडेंसी अगर हम रखना चाह रहे हैं तो वो हमारी इम्प्रूव कर रही है, हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है. सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सर्विस के जो हमारे पॉइंट्स थे, जो हमने आर्किटेक्चर में देखे थे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑन क्वालिटी सर्विस, एट्रीब्यूट, परफॉर्मेंस, लोड, स्ट्रेस जो है वो हमारे इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे इम्प्रूव होंगे इन टर्म्स ऑफ n-tier आर्किटेक्चर ज़्यादा, लेस इन टर्म्स ऑफ 3-tier आर्किटेक्चर, एंड मोर लेस इन टर्म्स ऑफ 2-tier आर्किटेक्चर. But in terms of cost, if we consider, the cheapest is 2-tier and the most expensive is n-layer architecture. So ये ग्राफ आपको एक complete overview provide करेगा in terms of users, in terms of non-functional requirements, in terms of architecture hierarchy, and in terms of number of business domain and size of the business organization and company. So moving towards that, we consider an example of it, that is n-layer architecture. So if you do consider, there's a client, and the client is requesting web server. Again, it can be over here a firewall and a proxy. Currently a firewall and proxy is not integrated in it. So client is requesting, the request goes to the web server, and web server sends the request to the business logic layer, and business logic layer, according to the business constraints, according to the business logics, business validations, and the business request view for the user, it sends the request to relevant server. The request can be to the media server, एक सेपरेट कंसर्न है. द रिक्वेस्ट कैन बी ऑफ डेटाबेस सर्वर, एक सेपरेट कंसर्न है. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट हो. सो मीडिया सर्वर की रिक्वेस्ट मीडिया सर्वर को चली जाएगी, और डेटाबेस मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर को चली जाएगी. सो अपनी अपनी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स एप्लीकेशन सर्वर को रिटर्न बैक किया जाएगा, एंड एप्लीकेशन सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को वेब सर्वर को देगा, और वेब सर्वर का जो रिस्पॉन्स है वो रेलिवेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली उस क्लाइंट को रिक्वेस्ट मिल जाएगा. अगर एक ही क्लाइंट है तो मल्टीपल एप्लीकेशंस में उसको मीडिया सर्वर का रिस्पॉन्स उस एप्लीकेशन का मिल जाएगा, और डेटा सर्वर का एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स डेटा सर्वर की एप्लीकेशन में उसको मिल जाएगा. सो इन दिस वे ये एन टीयर है. एक टीयर जो है ये है, एक ये है. आप चाहें तो यहाँ पे एक और टीयर भी इंक्रीज कर सकते हैं, और उस टीयर के अगेंस्ट अपना रेलिवेंट रिस्पॉन्स मिल जाएगा अगर उसकी रिक्वेस्ट जनरेट हुई तो. So what is
the summary of today's lecture, what we have learned today. First of all, we have studied what is software architecture and what are its important features, that is components, its connectors, and collaboration between the components. And then we have studied the key terminologies for the architecture, the key features, and then we have studied the web-based application architectures. As compared to desktop applications, web application architectures are complex because additional functionalities are there, and that additional functionalities are especially concerned with performance, load, stress, scalability. And then we have discussed de-layered architecture in web-based application. We have seen two-layered web-based architecture, then we have seen three-layered web-based application, and then we have seen n-layered web-based application. So in two-layer we have discussed presentation layer, in three-layer we have discussed presentation layer, and again business logic layer and data layer, and then finally we have discussed n-layered architecture where there are separate layers for data servers. And we have also seen the cost concept with layers. 2-tier is cheap, 3-tier is little expensive, and n-layer is most expensive. And we have also seen that for 100 users 2-tier architecture is fine, and for 100 to 1000 users 3-layer architecture is smooth, and for more than 1000 users, how much proceed till million users, n-layer architecture is best to choose. And then we have also seen the complexity between the each layer. The 2-tier is simple in terms of development and design, and 3-layer is little more complex, while n-layer is the more complex layer architecture for web-based application. So this is all about for today's lecture. Thank you for today's lecture.